Welcome students in the organic chemistry lecture series. In previous two videos we have seen about the nomenclature of alkenes and the basic rules of nomenclature of organic compounds. अगर आपने वो दो वीडियोस देखे नहीं है तो बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो आप वो दो वीडियोस देख लीजिए और उसके बाद you watch this video nomenclature of alkenes. As I said earlier, we have two papers, paper 1 and paper 2 in your FYBSc syllabus. This unit belongs to chemistry paper 1 and the name of this unit is nomenclature of organic compounds. In previous two videos, I have explained about the basic rules of nomenclature, why there is a necessity of nomenclature, and I have explained about the nomenclature of alkanes in detail in the second video. Now in this video we will see about the nomenclature of alkenes. Now as you know all, alkenes means the organic compounds having double bond, right? Or we can say that hydrocarbons having double bond are called as alkenes. Now what we have to do, whatever rules we use to give the name for alkanes, same all rules are used here also in case of alkenes. The major difference is that you have to change the ane suffix of alkane by ene. Okay, that means if ethane is the parent alkane, if two carbons are there and if ethane is the parent alkane, then that ethane will become ethene. We have to replace this ane by ene. Similarly propane will become propene like this. Okay, so this is the major change in the nomenclature of, or major difference in the nomenclature of alkane and alkene. बाकी जो रूल्स है वो सब सेम है. वो जो पहला रूल है इम्पॉर्टेंट, दैट इज select the longest carbon chain containing double bond. Now in case of alkanes also we have selected the longest carbon chain containing single bond. Now here we have to select the longest carbon chain containing double bond. So this is very important, you remember. Now for example consider this carbon skeleton. Suppose this is carbon, 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 carbon and carbon, and here also carbon. So what is the longest carbon chain here? Either it is this one or this one. So we have to select the longest chain having double bond. Okay, longest chain select करते समय हमको क्या ध्यान में रखना जरूरी है, that longest chain should contain double bond. वो longest chain में double bond होना चाहिए. अगर double bond नहीं है longest chain में तो वो longest chain हम consider नहीं कर सकते in case of alkenes. Okay, so what is important, remember that first of all select the longest carbon chain containing double bond. ठीक है, now आगे बढ़ते हैं. Now once we have selected the longest carbon chain, एक बार अगर हमने longest carbon chain select कर दी तो उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है कि हमें उसको नंबरिंग करना पड़ेगा, राइट? तो नंबरिंग करने के लिए हमें क्या समझना ज़रूरी है ये देख लो. जब भी हम नंबरिंग करने जाएंगे इस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को, तो हमें एक बात ध्यान में रखनी है और वो ये है कि वी हैव टू नंबरिंग द कार्बन्स फ्रॉम दैट एंड फ्रॉम विच डबल बॉन्ड इज नियर. ओके, तो डबल बॉन्ड जिस भी एंड से नज़दीक है उस एंड से हमें नंबरिंग करनी है, राइट? अब फॉर एग्जांपल दिस इज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तो नंबरिंग हम दिस कार्बन से नहीं कर सकते, इस कार्बन से नहीं कर सकते हम नंबरिंग. सो वी हैव टू स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम दिस कार्बन, राइट? So it will be 1 2 3 4 5 like this. So start numbering from that end or that carbon atom which is nearer to double bond. Okay, so what three rules we have to remember? First one, replace the suffix ane of parent alkane by ene. This is first one. Second one is select the longest carbon chain having double bond, and third one is the numbering is given from that end which is nearer to double bond.
ओके। और बाकी जो रूल्स है रिगार्डिंग सब्स्टिट्यूएंट्स, मतलब हमने अल्केन्स का नॉमेनक्लेचर देखा है, उसमें हमने देखा है कि हमें नंबरिंग उस एंड से देनी चाहिए जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट नज़दीक है। लेकिन यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि डबल बॉन्ड जिस भी एंड से नज़दीक है वहाँ से नंबरिंग देनी है, और उसके बाद वो सब्स्टिट्यूएंट को जो भी नंबर आता है वो हमें देना पड़ेगा। बाकी जो रूल्स है, अगर सेम सब्स्टिट्यूएंट है तो हम डाई ट्राई प्रीफिक्सेस यूज़ कर सकते हैं, वो जो रूल्स है वो सेम है। और एक महत्वपूर्ण नियम क्या होता है कि अगर 2-3 प्रकार के सब्स्टिट्यूएंट है तो हमें उनको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना पड़ता है, तो वो भी रूल हमें ध्यान में रखना है। तो ओके, तो वी कैन से दैट कि रूल्स रिगार्डिंग सब्स्टिट्यूएंट्स आर सिमिलर टू दैट ऑफ अल्केन्स, सो वो आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इफ अल्कीन कंटेन्स मोर देन वन डबल बॉन्ड, नाउ दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, राइट। अगर एक कंपाउंड है और उसमें 2-3 डबल बॉन्ड है तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू यूज द प्रीफिक्सेस डाई ट्राई टेट्रा लाइक दिस बिफोर दिस सफिक्स ई एन ई। ओके, मतलब अगर 2 डबल बॉन्ड है तो डाई इन हो जाएगा, 3 डबल बॉन्ड है तो ट्राई इन हो जाएगा, 4 डबल बॉन्ड है तो टेट्रा इन हो जाएगा। मतलब हमें ये जो ई एन ई सफिक्स है उससे पहले हमें ये प्रीफिक्सेस यूज़ करने पड़ेंगे, डाई ट्राई टेट्रा, अकॉर्डिंग टू प्रेजेंस ऑफ हाउ मेनी डबल बॉन्ड्स आर देयर इन द कंपाउंड्स। तो कंपाउंड में जितने भी डबल बॉन्ड है उसके हिसाब से हमें प्रीफिक्सेस यूज़ करने पड़ेंगे। तो ये सारे रूल्स है, फिर से एक बार देख लेते हैं। पेरेंट अल्केन का जो सफिक्स ए एन ई है उसको ई एन ई से रिप्लेस कर दो, ये हो गया पहला रूल। दूसरा रूल है कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कर दो, इसमें डबल बॉन्ड होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। देन नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम दैट एंड विच इज़ नियरर टू डबल बॉन्ड, ये है तीसरा रूल। और बाकी जो रूल्स है रिगार्डिंग सब्स्टिट्यूएंट्स, मतलब अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना, अगर 2-3 सेम सब्स्टिट्यूएंट है तो उनको प्रीफिक्सेस यूज़ करना, ये जो रूल्स है वो सेम है जो हमने अल्केन्स में यूज़ किए हैं। तो ये हो गया फोर्थ रूल। और पांचवा जो रूल है वो बहुत इंपॉर्टेंट कि अगर कंपाउंड में 2 या 3 या 4 डबल बॉन्ड है तो हमें सफिक्स ई एन ई से पहले प्रीफिक्सेस यूज़ करने पड़ेंगे अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड। तो आई होप ये सारे रूल आपको समझ में आए हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं अभी, ठीक है। ओके, लेट्स मूव। अगला वाला रूल है कि द लोकेंट कंटेनिंग द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इज प्लेस्ड इमीडिएटली बिफोर द सफिक्स ई एन ई। अब ये हम ये एग्जांपल देखते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सी फॉर एग्जांपल, मतलब ये जो नंबरिंग की जो पोजीशन है ना, ये हमें कहाँ रखनी है, ई एन ई जो सफिक्स है ना उससे पहले रखनी है। तो मतलब ये देखो, ब्यूट 2Ne, मतलब इससे क्या हमें प्रतीत होता है कि जो डबल बॉन्ड है वो सेकंड पोजीशन पे है ब्यूटेन के। तो ये हो गया ब्यूट 2 इन। सो इट इज़ मोर करेक्ट एज कम्पेयर टू 2 ब्यूटेन। ये भी करेक्ट है, आपने अगर ये भी लिखा तो भी चलेगा, कोई बात नहीं, कोई गल नहीं, लेकिन ये ज़्यादा मोर करेक्ट है, ये बहुत ज़्यादा करेक्ट है। तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं और ये भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मोर करेक्टली दिस इज यूज। ओके, सो ब्यूट 2Ne। अगला रूल हम देखते हैं, देखो, इफ द डबल बॉन्ड इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द टू एंड्स देन स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम दैट एंड विच इज नियर टू द फर्स्ट ब्रांचिंग। अब ये हम एग्जाम्पल देख के क्लियर करते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अब ये देख लीजिए एग्जाम्पल। अब यहाँ पर देख लो, सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देख लो, 1 2 3 4 5 6 कार्बन की है। आपने अगर यहाँ से भी नंबरिंग दिया तो भी चलेगा, 1 2 3 4 5 6, यहाँ से नंबरिंग करे तो भी सेम है, यहाँ से नंबरिंग करे तो भी सेम है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, सो नाउ व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट, नंबरिंग हमें इस एंड से करनी है या इस एंड से करनी है, वो इम्पोर्टेंट है इस रूल में। क्योंकि डबल बॉन्ड जो है ना वो दोनों एंड से सेम डिस्टेंस पे आता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमने यहाँ से नंबरिंग दी तो ये डबल बॉन्ड 3 नंबर पे आ गया, हमने यहाँ से नंबरिंग दी तो डबल बॉन्ड अगेन 3 नंबर पे आ गया। तो फिर कौन से एंड से नंबरिंग देनी चाहिए, तो अगर अगर यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूएंट नहीं होता, ये मिथाइल अगर नहीं होता तो आप कोई भी एंड से नंबरिंग करो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये
CH3 सब्स्टिट्यूएंट है तो हमें इसके बारे में सोचना पड़ेगा। तो हमें नंबरिंग उस एंड से देनी है जहाँ से ये सब्स्टिट्यूएंट भी नज़दीक आता है। ओके, तो इसीलिए हमने नंबरिंग जो है वो इस कार्बन से दी है 1 2 3 4 5 6 और इसका नेम क्या हो जाएगा, देखो ये है सब्स्टिट्यूएंट, सो करेक्ट नेम विल बी 2 मिथाइल और ये 6 कार्बन है तो हेक्सेन हो गया, तो हेक्सेन का ANE से रिप्लेस हो गया और ये 3 नंबर पे डबल बॉन्ड है इसलिए ये हो गया हेग्स 3ENE। सो कंप्लीट नाम क्या हो गया 2 मिथाइल हेग्स 3ENE। तो ये जो सारे रूल्स हमने देखे हैं वो अब ख़त्म हो गए हैं अल्कीन के नॉमेनक्लेचर के। हम अब इसके 5-6 एग्जाम्पल्स देखते हैं सो दैट आपको ये पूरे रूल जो है वो क्लियर हो जाएगी। ओके, सो विल सी द मोर एग्जाम्पल। सो फर्स्ट वन, सी दिस नाउ। सोचो इसके बारे में क्या था, हमारा पहला रूल क्या था, हमें पेरेंट अल्केन ढूंढना है, मतलब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमें ढूंढनी है। तो सोचो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कहाँ से होगी, हमें उस एंड से लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढनी है जहाँ से डबल बॉन्ड नज़दीक होना चाहिए, मतलब ये एंड हो गया, राइट। तो नंबरिंग विल बी फ्रॉम दिस कार्बन, सो 1 2 3 4 या 1 2 3 4 ये भी करे तो भी बराबर है, इधर जाए तो भी बराबर है। तो नंबरिंग 1 2 3 4, तो ये 3 नंबर पे ये मिथाइल ग्रुप आ गया और 1 नंबर पे क्या है डबल बॉन्ड है। तो पेरेंट अल्केन 4 कार्बन मतलब ब्यूटेन हो गया, ब्यूटेन का ANE रिप्लेस हो गया ENE से, तो ब्यूटीन हो गया। तो कहाँ पर है डबल बॉन्ड, 1 नंबर पे, तो ब्यूट 1ENE हो गया। और ये जो सब्स्टिट्यूएंट है इसको हमें आगे लिखना पड़ेगा, मतलब करेक्ट नेम क्या होगा 3 मिथाइल ब्यूट 1ENE। आई होप आपके ये समझ में आ गया। तो हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगेन ये देख लो, सी द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ओके, सो दिस एंड से जा सकते हो या दिस एंड से जा सकते हो, लेकिन डबल बॉन्ड जो है वो दिस एंड से नज़दीक है, ये एंड से नज़दीक है, तो हमें नंबरिंग इस कार्बन से करनी चाहिए। ओके, सो 1 2 3 4 5। ओके, सो पेरेंट अल्केन विल बी पेंटेन, तो उसका ANE रिप्लेस करेंगे, ANE से हो गया पेंटीन, 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है इसका मतलब पेंट 2 ENE हो गया। और ये सब्स्टिट्यूएंट है 4 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप, तो कंप्लीट नाम हो गया 4 मिथाइल पेंट 2 ENE। आई थिंक ये भी आपको क्लियर हो गया। हम आगे चलते हैं। अब देखो, अब यहाँ से स्टूडेंट्स क्या गलतियाँ करते हैं कि नंबरिंग यहाँ से शुरू करते हैं और या फिर यहाँ से शुरू करते हैं, तो वो गलत है। हमें नंबरिंग करते समय क्या ध्यान में रखना है कि डबल बॉन्ड नज़दीक होना चाहिए, तो हमें नंबरिंग इस कार्बन से करनी पड़ेगी, इस कार्बन से। सो 1 2, अब अगर आप यहाँ इधर जा सकते हो या इधर जा सकते हो, बहुत सेम है, तो 1 2 3 4 हो गया। ओके, सो देखो 1 2 3 4, तो ये CH3 CH2 हो गया सब्स्टिट्यूएंट, सो इट विल बी 2 इथाइल, 2 इथाइल। और पेरेंट अल्केन क्या है ब्यूटेन, तो उसका ANE रिप्लेस होगा ENE से, सो ब्यूट 1ENE और आगे क्या आएगा ये 2 मिथाइल, तो नाम हो गया 2 इथाइल ब्यूट 1ENE। तो ये क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। तो ये देखो इसमें 2 डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो नंबरिंग कहाँ से भी करो कोई गल नहीं, क्योंकि सिमेट्रिक है ये 1 2 3 4। ओके, तो 1 पोजीशन पे डबल बॉन्ड और दूसरा डबल बॉन्ड 3 पोजीशन पे, सो 1 3 ब्यूटा डाइइन, तो 2 डबल बॉन्ड है इसलिए डाइइन, तो 1 3 ब्यूटा डाइइन। ओके, तो आगे चलते हैं। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या हो जाएगा 1 3 5 हेक्साट्राइन। सिमिलरली देखो ये, अब देखो यहाँ से नंबरिंग होगा 1 2 3 4 5, तो क्या हो गया 3 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है तो 3 मिथाइल, और 1 और 3 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है तो 1 3 पेंटाडाइन, तो 3 मिथाइल पेंटाडाइन। तो ये हो गया अल्केन्स के IUPAC के एग्जाम्पल्स। तो इस लेक्चर में हमने अल्कीन के नॉमेनक्लेचर के बारे में पढ़ा। प्रीवियस 2 वीडियोज़ में हमने बेसिक नॉमेनक्लेचर रूल्स और अल्केन के नॉमेनक्लेचर के बारे में पढ़ा है, तो वो वीडियोज़ देखने के बाद ये वीडियो देख लो तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।
और वीडियो देखते रहिएगा और स्टडी कीजिएगा। थैंक यू। हैव अ नाइस